My dear viewers, it is indeed my happiness knows no bound today, in as much as I happen to be at the residence of one of the very esteemed scholars hailing from the Punyabhumi of Mithila, Honorable Sri Suresh Narayan Jhaji. And in fact, you all will be surprised that I had a very cursory sort of meeting with him, that too almost a month ago, while my book, my latest book, The Living Legends of Mithila Part 2, that you all would reckon with this particular fact that this happens to be my very latest book. While it got launched in Ranchi, there serendipitously though, I stumbled upon this great scholar, Sri Suresh Narayan Jhaji. And you all would be surprised. In fact, I am not keeping well nowadays because I am very much under some sort of meticulous, prescription of a doctor, that is under some sort of, very holistic and comprehensive sort of medication. But nonetheless, I made it a point to visit to Sri Suresh Narayan Jhaji on account of his invitation, and in fact, even the greater on account of a greater curiosity and excitement in me, that is to meet, face to face with a great scholar and to learn something from him, especially in the broader perspective of that of Vedas, Upanishads, Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa, and about Ramakrishna Mission. My dear audience, my dear viewers, indeed Sri Suresh Narayan Jhaji is one of the brand ambassadors of taking Swami Vivekananda to the different parts of Bihar and Jharkhand, especially with a emphasis on that of Punyabhumi of Mithila. And you can consider my today's interaction just about to begin with that of Sri Suresh Narayan Jhaji is in another kick starting of that of, or rather the building the tempo of that of upcoming book, that is The Living Legends of Mithila Part 3, which will start hopefully in the fag end of 2027. But nevertheless, it is going to be a precursor to that sort of momentum, and it is because my interaction with that of Sri Sureshji is going to vindicate that particular perspective, that particular ambition of mine, which is only for Mithila and Maithili. Most importantly, my dear viewers, when in course of few conversations that I have had with that of a great scholar, Sri Sureshji, I was almost taken aback. And I tell you, without an iota of exaggeration, or without myself even being, adulatory in terms of my observation, that he happens to be one of the greatest scholars of Mithila in contemporary times. And of course, to my perception, he happens to be the greatest scholar of Mithila, who has so much exposure in Vedas, Upanishads, in knowing Swami Vivekananda, Maharshi Sri Aurobindo, and about India's Sanatan glory. That is why that was the pivotal criterion or pivotal factor which almost goaded me, or which almost compelled me to be present today and to have one-to-one interaction with Sri Sureshji. Because knowing Swami Vivekananda is knowing Bharat Varsha. That is what great Maharshi Sri Aurobindo and even Gurudev Tagore had articulated in the past, that Swami Vivekananda was the collective consciousness of Bharat Varsha. And my dear viewers, before I engage Sri Suresh Narayanji for a very holistic talk and very comprehensive sort of conversation on our ancient Sanatan glory, it becomes all the more incumbent on my part to specify or to articulate at this particular juncture that Mithila needs the vision of Swami Vivekananda to spread far and wide within the landscape of entire Mithila, because there happens to be some sort of naked, staring, or you can say some sort of stark vacuity in terms of the overall comprehensive perspective of that of Swami Vivekananda, just disseminating across the landscape of Mithila. And Sureshji, Sri Suresh
Narayan ji happens to be one of that particular brand ambassador, one of that sort of visionary who envisages that sort of mission, a very comprehensive mission, a very altruistic sort of mission to spread the belief system of nationalism, which was espoused by the great Swami Vivekananda, whom I consider to be only after great Adi Sankaracharya to have spoken about the glory of Sanatana Dharma, that too while India was passing through or negotiating with the miserable times under the colonial rule of imperialistic British government. There rose a great Swami who roared like a lion and tried to awaken the hibernating consciousness of Bharat Barsha. Oh, Amritasputra, it is a time, to wake up, to stand on your feet. Your mother India, Ma Bharati, is beckoning you. You have to stand up to her glory, to protect her glory, to defend her glory, and to spread her glory across the world. So that's why Vivekananda's vision has to reach across, has to disseminate across the length and breadth of Mithila. And the man who is a flag bearer of that particular vision is Suresh Narayanji. And that is why I was all the more curious as well as excited to have one-to-one interaction with that of Honorable Sri Sureshji. Sureshji, and most importantly because I want his vision to be comprehensible to one and all, I am going to interact with him in Hindi, but I will make it a point. He also speaks English well, but he considers it to be more pragmatic and to be more beneficial if he will speak in Hindi, so that he will be comprehensible to one and all. And I will see to it that time and time again, rather intermittently, I try to translate the gist of his observations or gist of his communication into English as well. But most importantly, my conversation with Honorable Sureshji is going to happen in Hindi. Sureshji, आज मैं ये ईश्वर की कृपा है, हम देख रहे हैं कैसा ये स्वामी विवेकानंद जी आपके मतलब आपके पूरा घर को रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा जी, पूरा भगवान बुद्ध, सभी लोग आपके घर को गौरवान्वित कर रहे हैं और आप उनके छाया में बैठे हैं. तो कृपया करके आप थोड़ा हमारे दर्शक बिंदु को बताएं कि ये जो आपको देश के प्रति ये भावना, खास करके वेद पढ़ना, उपनिषद का ज्ञान, फिर स्वामी विवेकानंद का ज्ञान को देश बिहार झारखंड में पूरा फैलाना, इस तरह की मतलब भावना आप में कब उत्पन्न हुआ और कैसे आप इस दिशा की ओर चल पड़े? आदरणीय सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपको जो हमारे अभी बीच में बैठे हुए हैं विवेकानंद झा जी, इनका परिचय भी जानना जरूरी है. अभी भारतवर्ष में जो इतने भी नव भारतवर्ष में लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं और जिनकी निर्झरणी हमेशा देश हित के लिए चलती है, उसमें विवेकानंद जी का नाम वास्तव में धन्य है और ये स्वनाम धन्य विवेकानंद जी हैं. विवेकानंद जी का स्पिरिट जो है आप में भरपूर भरा हुआ है और आपकी भाषा शैली, खास करके आंग्ल भाषा जो है, उसमें आपके पुस्तकों को मैंने जो विहंगम दृष्टि देखा है, उसके बाद मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ. आज मेरे निवास स्थान पर आपने आने का कष्ट किया है. आपकी इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है. भारतवर्ष के लिखे पढ़े विद्वानों के बीच में आप हंस की तरह से शोभित हैं. मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं जैसे ही चलता हूं, जैसा ईश्वर चलाते हैं. अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई सिद्धांत नहीं है. मैं कोई लकीर का फकीर भी नहीं हूं. लेकिन जैसा कि मेरी माँ रामायण की बहुत बड़ी भक्त थी, मेरे पिताजी रामचरितमानस और गीता, दुर्गा सप्तशती के प्रकांड विद्वान थे, आंग्ल भाषा के विद्वान थे. मेरी माँ प्रोवर्ब में भी यूज करती थी रामचरितमानस की चौपाई जो देहात में लोग करता है. तो उन्हीं के कुख से जन्म लेने के बाद घर का संस्कार ऐसा था कि घर में एक पुस्तकालय
विशाल पुस्तकालय, और उस घरेलू पुस्तकालय का नाम रखा गया था नारायण पुस्तकालय। उसमें मैंने उस समय में करीब करीब बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया था, और उसका फल ये हुआ कि 8 वर्ष की अवस्था में, जब कक्षा द्वितीय में मैं पढ़ता था, दूसरे क्लास में, उस समय में मैंने पेंसिल से, HB पेंसिल होती थी, उससे एक कॉपी पर एक चिट्ठी लिखा अपने पिता के नाम से कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बात क्या थी, तो शंकर दिग्विजय नाम का पुस्तक जो है मैंने 8 वर्ष की अवस्था में पढ़ा था। उसका प्रभाव ये पड़ा कि 8 वर्ष में वो निकल गए थे, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। और इस तरह से मैंने वो पेपर जो है अपने पिता के खादी का कुर्ता पहनते थे, उनके कुर्ते में मैंने डाल दिया। पिताजी जब आए, उन्होंने देखा तो उनको पहली बार वो बिगड़े नहीं। हमारे पिताजी बिगड़ते भी थे, बहुत प्रशासक थे, लेकिन उन्होंने बिगड़ा नहीं। उन्होंने सिर्फ हमको समझाया कि तुम्हारा उम्र जो है, आयु जो है, इसको अनुमति तभी नहीं देता है, तुम पढ़ाई लिखाई करो, अध्ययन करो। और उसका कोई असर हमें नहीं पड़ा। और करीब करीब क्लास, उसके बाद से मैंने घर से भागने का प्रयास किया, और जब जंगल जाते हैं, वन की ओर जाते हैं, तो हम समझते हैं आम के गाछी होते थे हम लोगों के यहाँ, आम का ही हम लोगों का मुख्य फसल है। तो आम के गाछी में जब गया तो मैंने सोचा कि यही जंगल है, यही तपस्या होता है। शाम में तपस्या करना शुरू कर दिया। 9-10 वर्ष का होगा, 8-9 वर्ष का। तो फिर डर लगने लगा, किधर वगैरह हुआ करने लगा, तो डरने लगने लगा, और उसके लिए हम वापस आ गए। फिर एक बार और कोशिश किए, सफल नहीं हुए। उसके बाद जो है सो मैंने पुस्तकालय में करीब करीब क्लास 9 तक जो है 12 पुराण मैंने पूरा पढ़ लिया था। और मूल प्रति जो राम महाभारत का जो संस्कृत और हिंदी दोनों में रहता था लिखा हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैंने 1 लाख श्लोक का पूरा महाभारत जो है, कोई मुझको कहता था कालांतर में कि आपका मुख्य विषय क्या है यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, तो मैं कहता था रामायण महाभारत। और अपने आप को ये समझता था कि इसमें से कहीं से भी कोई पूछेगा तो उसका उत्तर जो है सो मैं बिल्कुल ही सटीक दे सकता हूँ, मैं चुप तो बिल्कुल ही नहीं रहूँगा। मुझे याद आती है ये बात कि तब से लेकर के ये एक प्रकार की धारणा बन गई। फिर कॉलेज वगैरह में गए तो बहुत दिनों तक व्यवधान हो गया पढ़ाई लिखाई में। कोर्स की किताबें जो होती है, इसको रामकृष्ण देव कहते हैं चाल करी विद्या, चावल अर्जित करने की विद्या, तो उसमें लग जाने से थोड़ा सा स्वाध्याय कम हुआ, लेकिन लाइब्रेरी से जुड़ता रहा। और ठीक मेरा स्थानांतरण DAV बीना से उत्तर प्रदेश से झारखंड में आया। तो मेरे एक रिलेशन में दामाद लगे, लेकिन बहुत मूर्धन विद्वान है, डॉक्टर जयशंकर झा जी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अमंगल में भी मंगल छिपा होता है। मैं वहां से बोकारो की तरफ एक स्कूल में ज्वाइन किया, और DAV स्कूल में। Just a minute. My dear viewers, it is very important. While our estimated childhood days, that at the bare age of 8, he wrote a letter to his father, expressing his intense desire to take to sannyasa. Suddenly a sort of recollection struck my mind. In famous book of Hermann Hesse, that is Siddhartha, that the primary character Siddhartha, a Brahmin boy, at the bare age of 11, he expressed his, just in a similar way as it was being spelled out by our honored guest. He went to his father and expressed his desire that he too wanted to, adopt sannyasa. In the morning, early down, his father said, "Go to your mother, seek her blessings, and go to the jungle, do whatever you aspire to do." In the same way, just see the penchant, the intense penchant, the intense aspiration of that of Sri Suresh Ji to embrace sannyasa, to embrace asceticism and ascetic life at such a tender age of 8 years old. सुरेश बाबू, आप बड़ा सुंदर बोल रहे थे, तो फिर आपने DAV स्कूल में आप प्रविष्ट हुए। उसके बाद कैसे आप स्वामी जी की तरफ मुड़े? 10th में एक चैप्टर है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, वो मैं जब पढ़ाता था तो मेरी ये आदत थी कि मैं सिर्फ विवेकानंद जी को ही नहीं, संसार के सारे महापुरुषों के प्रति मेरा पैशन था अधिक से अधिक सीखने का।
सैकड़ों हजारों महापुरुषों को मैंने हृदयंगम कर लिया था, जिसका फल बाद में चल करके बतवा। स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ा, लाइब्रेरी में जब पढ़ता था, जब गाँव में था क्लास 9-10 में, तो प्रेमचंद समग्र, बंकिम समग्र, शरद समग्र, ये किताब सब तो पूरा पढ़ लिया था। उपन्यास वगैरह जितने भी थे उच्च कोटि के उपन्यास सब। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा, एक आया रामकृष्ण मिशन टॉपिक, आर्य समाज, फिलोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद जो है सो आपको ये जो है यंग बंगाल मूवमेंट डिरोजियो का, तो ये सारे जो पढ़ाते थे उसमें जब रामकृष्ण मिशन आया तो मुझे मुंह से निकल गया अकस्मात ही, यहाँ कोई रामकृष्ण संबंधी कोई आश्रम या कोई यहाँ पर कोई है, कुछ ऐसा संस्थान है कोई? तो एक विद्यार्थी ने कहा, सर हमारे यहाँ बोकारो थर्मल में है। वेरी गुड, मैं बोकारो थर्मल गया, वहाँ पर जाकर दर्शन किया, वो ठाकुर का मूर्ति है। उसके बाद जब मैं घर से आया तो मैंने अपने एक मित्र को कहा कि गाँव चलिएगा, तो वो बोले कि हम बोले कि चलिएगा, तो हम बोले कि जो वो तो हम नहीं जा पाएंगे, दशेश्वर चलना है तो चलिए। मेरे मुँह से अकस्मात निकला। ये निश्चित रूप से ये था, ये घटित हुआ था, मुझको जहाँ तक याद है कि दक्षिणेश्वर जाऊंगा इसकी कोई चर्चा नहीं थी। गाँव जाने के उपक्रम में हम लोग दक्षिणेश्वर चले गए एक मित्र के साथ। वहाँ जब मैंने दक्षिणेश्वर में पैर दिया, मुझको एक प्रकार का एक शरीर में उद्दीपना होने लगी, लगा कि इस स्थान से मैं पहले से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ से जुड़ा हुआ हूँ। और उद्दीपना के चलते फिर उसके बाद मैं ठाकुर का एक फोटो लाया, ठाकुर माँ काली के साथ अपने घर में टांग दिया। कुछ चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं चौकी पर जो है सोया हुआ था, और सोया हुआ था जा करके बैठ गया तो मैंने देखा कि मैं बिस्कुट खा रहा था। वो बिस्कुट जो ये मेरी अनुभूति है, और मैंने देखा है प्रत्यक्ष, वो बिस्कुट तो शून्य में लटक रहा है और ठाकुर की ओर इंगित कर रहा है। तो उसके बाद से जो है सो मेरा मन जो है सो मैं मतलब विश्वास हो गया कि मैं अब इन्हीं के लिए बना हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा जो है need to be, his version needs to be translated into English for the anglicized intellectuals to take in cognizance as well as a notice of what this great scholar had just now narrated about his own personal experience. After returning from Dakshineshwar, the abode of Ramakrishna Paramahansa, he had a very peculiar sort of experience or realization. When he was sleeping on bed, he just saw that it was not a dream, it was a real life experience, that he just sat on the bed and was just having a biscuit, and lo and behold, he saw the biscuit was just dangling in the air, and it was making an indication towards Thakur's Ramakrishna Paramahansa's portrait. That means Ramakrishna Paramahansa was beckoning him towards himself, and that was the sign and symbol of this great scholar taking to Ramakrishna Paramahansa as his raison d'etre and summum bonum. Both. उसके बाद से मैं वहाँ पर आश्रम था, उस आश्रम से मैं जुड़ गया। छोटा छोटा काम करता था, जैसे कि प्रसाद वगैरह बनता था तो प्रसाद वगैरह लेकर के जब इस रूम से उस रूम में पहुँचाना, भक्तों को बांटना, खास करके तिथि पूजा होती है जयंती ठाकुर की, माँ और स्वामी जी का, तो इसमें उससे और अधिक बढ़ने लगा। और वचनामृत, रामकृष्ण वचनामृत का पाठ जो है प्रतिदिन घर में करने लगा। तो मेरे एक और मित्र थे, वो बंगाली मित्र थे, उन्होंने कहा कि अगर दीक्षा लेना हो तो अभी ले लीजिए, क्योंकि ऐसे गुरुदेव नहीं मिलेंगे। उस समय में मेरे गुरुदेव की आयु थी 93 ईयर्स। उनका नाम श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जिन्होंने कि उनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में और देह त्याग किया था वो 1998 ईस्वी में, मतलब 97 ईयर्स पूरा फुल स्पैन जो है। और उसके बाद करीब करीब वो 80 वर्ष तक तो वेदांत का प्रचार किए थे। वो ब्रह्मा के पुरुष थे, ब्रह्म का दर्शन करते थे वो, उनका आशीर्वाद बहुत मिला। तो वहाँ चले गए तो दीक्षा के लिए चिट्ठी लिखा मैंने, उसमें शर्त रहती है रामकृष्ण से दीक्षा लेने में कि आप क्या पढ़े हैं, आप कौन कौन पुस्तक पढ़े हैं रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, तो वो सब मैंने पढ़ ही लिया था, जरूरत से अधिक पढ़ लिया था। तो इसलिए हम वो पास करके उस फॉर्म भरा गया, उसमें आ गया वहाँ से लेटर कि आप आ जाइए, इस डेट को दीक्षा है। तो 1994 ईस्वी 1994 में 16 जून को मेरी दीक्षा जो है श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज देन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर। और उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन, कंसंट्रेशन
के साथ साथ जो है दिन रात जो है पुस्तक पढ़ना, विवेकानंद साहित्य पढ़ना, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जी जिनके लेखक उनके ही पार्षद हैं स्वामी शारदानंद जी महाराज, वो और मास्टर महाशय का सूर्यकांत देव पाठ निराला जी ने अनुवाद किया था उसका मूल कथामृत को वचनामृत में, वो पढ़ने का स्वभाव मैंने करीब करीब 20 बार पूरे परिवार को बैठा करके रात भर 20 बार आवृत्ति किया होगा तीनों खंड का। अब तो 2 खंड में मिलता है और हर एक घर के लिए, हर एक हाउस होल्डर के लिए रामकृष्ण वचनामृत जो है वास्तव में अमृत है। हमारे मन में जो दुविधा, हमारे मन में जो दुख, हमारे मन में जो कष्ट या शंका या लोभ या मोह जो ग्रसित करता है, उसका आंसर आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस पुस्तक को, जिस पेज को आप उठाइएगा पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। और उससे होकर के मेरी पत्नी कविता झा 1 साल के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। हम लोगों ने यह कहा गया किसी को कहना नहीं है दीक्षा लेने के लिए, स्वतः प्रेरणा ना हो। तो उन्होंने जब मुझको देखा तो 95 में 1995 में उन्होंने दीक्षा ले ली और 2002 में मेरे दोनों पुत्र ने स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद रंगनाथानंद जी महाराज का जितना भी किताब था वॉज ग्रेट, मतलब स्टार ऑफ क्या कहें, उनको रोडिंग स्टार कहा जाता था, रोडिंग लाइन कहा जाता था वेदांत का। विश्व में कभी कभी 100 देशों का भ्रमण किए होंगे और सरकारी राजदूत सब जो होते हैं विभिन्न देशों के, वो उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आते थे। वॉज द स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ इंडिया फॉर 4 डिकेड्स। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज। तो उनकी जितनी भी किताबें थी मुख्य रूप से, खास करके इटर्नल वैल्यूज ऑफ सोशल चेंज ऑन सोसाइटी और ग्रेट पर्सनैलिटीज, इस सब पर जितना भी लिखा था, तो वेद उपनिषद फिलोसफी, तो इसका अध्ययन मैंने ईमानदारी से किया। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बुरा पंडित बन गया, ये ईमानदारी से बहुत ही लगन से पढ़ा। मुझको उसके सिवा कुछ पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। एक और बात है, कोर्स की किताब तो मैंने पढ़ा है बाद में, मुझको कोर्स की किताब से ज़्यादा उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब जो है हमको ज़्यादा खींचता था अपनी ओर। तो यही है कि उनकी कृपा होती है। तो अब मैं आप कि आप जो है स्वामी विवेकानंद का विजन को आपको ऐसा क्या लगता है कि उनका विजन पूरा सनातन धर्म, पूरा भारत वर्ष के लिए एक अनिवार्य विजन है, क्योंकि आप उसके प्रचार में लग गए। आप आज बिहार झारखंड के कन्वीनर हैं, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद मंच के कन्वीनर थे, रामकृष्ण मिशन के कन्वीनर थे, और पूरा मिथिला में भी आपने झंडा फहराया स्वामी विवेकानंद का, तो थोड़ा और फहरा भी रहे हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शक बिंद को बताएं, आखिर स्वामी विवेकानंद का विजन को आप क्या समझते हैं? मिथिलांचल में और मिथिलांचल के बाहर जहाँ यहाँ तक कि राजस्थान में भी जब गया या कि झारखंड में हूँ, चाहे और कहीं भी जाता हूँ, तो मिथिला की जो विभूतियाँ हैं, खास करके अयाची मिश्र, मंडन मिश्र, पक्षधर, वाचस्पति, इन लोगों की जो जीवनी है, उन लोगों का जो कर्तृत्व है, वो लोगों को बताने में मुझे बचपन से ही गर्व महसूस करता था। बहुत बढ़िया। और उसका जो है वो क्या कहेंगे, तो वो सीढ़ी अगर थी तो सोपान जो विवेकानंद तक आया, आदि शंकर या रामानुजाचार्य, चाहे द्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत, चाहे शुद्धाद्वैत हो, इस सब के बारे में मेरे पास में जो जानकारी मिली वो धीरे धीरे विवेकानंद में सब समाहित हो गए। इसलिए विवेकानंद टोटलिटी थे, इन सब को मिलाने वाले थे। ही वॉज ए ग्रेट कोऑर्डिनेटर, हार्मोनाइजर और वेदास, कुरान, बाइबिल, सबको जितना भी आप हार्मोनाइज कीजिएगा तो उसमें से जो एसेंस निकलेगा विवेकानंद की वाणी होगी। तो आप कह सकते हैं कि आप ये मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ कि कैसे हुआ। तो विवेकानंद जी से तो जुड़ा, विवेकानंद जी के बारे में बोलने का मौका भी मिला, खास करके इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो है एशिया का सेकेंड इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है गोलपाट कलकत्ता में, वहाँ भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर बोलने का अवसर मिला है। इसको आप कैसे बोलते हैं? ये आदिशंकरा का फिलोसफी जो ये स्लोगन है या उनका जो मतलब अफोरिज्म है, कैसे आप एक्सप्लेन किए वहाँ पर? उसको ही बोल रहे हैं। और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में मेरा नेशनल सेमिनार में 2 बार भाषण हो चुका है। उसके बाद जो है सो BHU में डीन ऑफ आर्ट फैकल्टी के निमंत्रण पर मेरा वहाँ पर भाषण हो चुका है।
तो पटना रामकृष्ण मिशन में, रांची रामकृष्ण मिशन में, तो रामकृष्ण मिशन में तो ठाकुर मान स्वामी जी और वेदांत फिलोसफी पर विस्तृत चर्चा होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो शंकराचार्य जी का है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है सो झूठा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं शब्द नहीं आता है। उपनिषद कहता है इसमें कुछ नहीं शब्द नहीं, इसमें जो है एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मतलब मिथ्या मतलब है कि परमेश्वर जो परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं, उनके प्रकाश से चूंकि वो भाषित होता है और उनकी वो लीला का द्योतक है, क्योंकि उनकी जो कल्पना है वो हमको साकार दिखता है। जो भगवान कल्पना रूप में देखते हैं, जो भगवान कल्पना के नेत्रों से देखते हैं, आंख मूंद करके पद्मासन पर बैठे हुए हैं, शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे हैं, तो आराम नहीं कर रहे, वो योग निद्रा में है और योग निद्रा से पूरा जगत का सृष्टि भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है, सत्य एक ही है ब्रह्म, बाकी इल्यूजन है, भ्रम है, लेकिन झूठ शब्द नहीं है। मिथ्या मतलब यहाँ पर हुआ भासमान है, भाषित है, इसलिए उन्होंने कहा ये। Very good. My dear viewers, what our distinguished guest says, that is what great Adi Shankaracharya's philosophy sums up just to a particular sentence. This world is a manifestation of Brahma. Nothing exists apart from Brahma. That is what he had tried to say, he had tried to articulate. I am once again going back to our distinguished guest. तो ये आपने बहुत सुंदर इसका कल्पना किया। तो अब ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद का विजन हिंदुस्तान के लिए क्यों इतना माने आप क्यों मानते हैं इतना आवश्यक है? क्योंकि आप सब कुछ छोड़ करके स्वामी विवेकानंद का विजन मिथिला में एक मिथिला का संकल्प बनाने में एक आप जुटे हैं और उसको पूर्ण रूप से कर रहे हैं। आपने मुझे ये भी कहा कि दरभंगा में एक बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण का मिशन का निर्माण हो चुका है, जो कि 50 एकड़ में है, शायद 50 कट्ठा में है। तो उसके बारे में कुछ बताएं। अब सबसे पहली बात विजन क्या है? विवेकानंद जी का विजन जो है वो भारतवर्ष के लिए तो है ही है, विश्व के लिए भी है। क्योंकि वो जैसे आपने देखा होगा यूएनओ में या लीग ऑफ नेशंस बना था, या उसके पहले भी जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनेस्को वगैरह है, उसमें जो बहुत सारा पॉइंट है विवेकानंद का डायरेक्ट पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है। तो यूथांट जो थे वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, और वो जो उन्होंने भाषण दिया था विवेकानंद बहुत कोट किया था, उस पर एक आलेख भी था उनका। तो कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद जी का विजन एक ही चीज़ था कि भारत का जो भविष्य है वो भारत के भूत से ज़्यादा महिमा मंडित होगी। भारत माता पहले से भी अधिक महिमा मंडन होकर के, महिमा मंडित होकर के सिंहासन पर विराजमान हो रही। जो अंधे वही नहीं देख सकते, उन्होंने कहा था जो अंधे वही नहीं देख सकते, जो विक्षिप्त वही नहीं समझ सकते कि भारत माता अपनी गंभीर निद्रा से जाग उठी है, उसे अब कोई सुला भी नहीं सकता है। और उनका विजन स्पष्ट था कि पहले भारत की स्वाधीनता स्वतंत्रता, पहले मैं इस पर जाऊंगा। उन्होंने कहा था अपने मद्रास और रामेश्वरम के लेक्चर में कि सुदीर्घ रजनी अब समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिद्रा में निमग्न शव मानव जागृत हो रहे हैं। इतिहास की बात तो दूर रही कि बदंतियां भी जिसको छेदने में असमर्थ है, वहीं से एक आवाज आ रही है कि भारत माता अपनी गंभीर निद्रा से जाग उठी है और इसे कोई सुला भी नहीं सकता है। आवश्यकता है लोहे की मांसपेशियां, पत्थर सा हृदय, और तुम्हें पाताल में ही क्यों न जाना पड़े, तुम्हें समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, तलवार की धार पर ही क्यों न जाना पड़े। अरे जब मृत्यु अवसंभावी है तो दूसरों कल्प कल्याण के लिए क्या उसी क्षण मर जाना श्रेयस्कर नहीं होगा? विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं देख रहा हूं कि 50 वर्ष के बाद भारतवर्ष स्वाधीन होगा, आज़ादी मिलेगी। तुम लोग क्या हो? निकम्मे निकम्मे, तुम भेड़ हैं, हम भेड़ हैं, हम शासित होने के लिए पैदा हुए। तुम शासित नहीं हो, तुम विजित नहीं हो, तुम विजयी बनो, तुम विजयी हो, तुम विजय। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था भारत का कोई भी युवक भारत के किसी राजा महाराजा का वंशज कहलाने में गर्व का अनुभव नहीं करता है, वह तो किसी सन्यासी का वंशज करने में, किसी ऋषि का वंशज कहलाने में वो ज्यादा गौरव अपने आप को समझता, गौरवपूर्ण समझता है, बृहस्पति की किसी राजा का उत्तराधिकारी बनना। विवेकानंद का यह लक्ष्य था कि पुश फॉरवर्ड, भारत को आपको आगे की ओर बढ़ाओ। और तब तक नहीं, उन्होंने कहा था मैं रहूं या न रहूं,
मेरा स्पिरिट जो है हर एक व्यक्ति के साथ काम करेगा। मैं किसी ओल्ड गारमेंट की तरह अपने वस्त्र को त्याग दूंगा, अपने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग दूंगा, लेकिन वस्त्र रूपी शरीर को त्याग दूंगा, लेकिन मैं कभी भी किसी भी वक्त में तुम लोगों का काम करना नहीं छोड़ूंगा। मैं काम करता रहूंगा, तुम्हारे अंदर से काम करूंगा। अब इस तरह से मैं मिथिलांचल की, जहां तक आपने बात की, मिथिलांचल में विवेकानंद जी के नाम से एक आश्रम खुला, प्राइवेट आश्रम खुला राजकुमारगंज दरभंगा में। कुछ कारण से वह स्थानांतरण हो गया है अभी। उस आश्रम का एक चक्का गांव है, दरभंगा के ही पेरीफेरी में है, आपको करीब करीब 5-10 किलोमीटर है चक्का गांव। 50 कट्ठा में वो रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासी सब के मार्गदर्शन में है। तो प्राइवेट आश्रम लेकिन बन रहा है और काम भी चालू है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं, और आशा है कि आने वाले वक्त में वेदांत दर्शन जो है विवेकानंद जी का मिथिला में केंद्र बनेगा। और इसके लिए मुझे और भी प्रयास करना पड़ेगा। मैं चाहता था कि हर एक ब्लॉक में, हर एक चौक चौराहे पर विवेकानंद की तस्वीर हो, चाहे उनका मूर्ति हो, और उससे लोग प्रेरणा लें, उसमें कुछ प्रेरणादायक जो है बातें एपिटैफ टाइप लिखा हुआ मिले, और उसके हिसाब से जो है सो भारतवर्ष जागृत होगा। ये विवेकानंद का संदेश एक ही है, सक्रियता। उन्होंने कहा है, इस लाइन को कोट कर लिया जाए महोदय, कि निष्क्रिय सज्जन से दुष्ट बलवान ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि निष्क्रिय सज्जन जो किसी काम का कभी भी नहीं रहेगा, लेकिन दुष्ट बलवान का अगर दुष्टता समाप्त हो जाती है, वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है, महान काम कर सकती है। इसलिए उन्होंने 3 चीज पर बल दिया था। क्या? मसल्स पावर फर्स्ट ऑफ ऑल, शरीर ठीक होना चाहिए। क्या लोग करता है? विवेकानंद ने तो कहा था कि फुटबॉल खेलो, गीता से अच्छा फुटबॉल खेलना है। और दूसरा लाइन को नहीं कहता है कि गीता का मर्म तुम तभी समझोगे जब तुम माइटी वॉरियर अर्जुन की तरह बनोगे। तो इसलिए कहा था फुटबॉल खेल करके पहले मसल्स पावर बढ़ाओ। मसल्स पावर तो हाथी में बहुत है, शेर में भी है, बहुत बड़ा पहलवान में है। इसके लिए दूसरा चीज कहा था इंटेलेक्ट, पावर ऑफ इंटेलेक्ट। पावर ऑफ इंटेलेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड बुद्धि बलम। तो बुद्धि तो ओसामा बिन लादेन में भी था, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके आगे क्या बोले? आत्म बलम, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ सोल, उसको आपको इग्नाइट कर देना है। तो विवेकानंद ने इस चीज को कहा था। तो इस तीनों चीज की जरूरत आज के युवाओं को सबसे अधिक है। पैसा के लोभ में, फैंटेसी के लोभ में हमारी सभ्यता जो गर्त में जा रही है। खास करके जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स हमारे देश में आए, उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो वो लोग जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वेस्टर्नर्स जो हैं, वो हमको फॉलो कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, शिव शंकर का जयकार लगाते हैं, कुंभ में विदेशी आते हैं, बनारस में विदेशी को देखिएगा। लेकिन हमारे अपने देश के युवक जो हैं वो सिनेमा हॉल में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, बशर्ते कि आप तो स्वामी विवेकानंद जी का पूरा विजन बता दिए, कैसे उनका मिथिला में रिलेवेंस है, आपने बहुत अच्छा पता, उसके लिए आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं। आप थोड़ा 2 लाइन में शॉर्ट में अपना ये पर विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के साथ आप क्या क्या काम किए, किस पद पर किए और क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा हमको बहुत चंद शब्दों में बताइए। रामकृष्ण मिशन के द्वारा निर्देशित बिहार भारत में, पूरा भारतवर्ष में है भाव प्रचार परिषद, जिसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है। बेलूर मठ के जो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सन्यासी होते हैं, उसके ऑल इंडिया कन्वेनर होते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे सर्वाधिक काम करने का मौका मिला बिहार झारखंड में, एज ए कन्वेनर ऑफ बिहार झारखंड, दोनों ज्वाइंट स्टेट। उसमें ज्वाइंट कन्वेनर मैं 2004 से लेकर के 2009 तक था, और 2009 से लेकर 2023 तक था। बीच में 2 साल का गैप लिए थे खाली। तो इसके लिए रामकृष्ण मिशन की अथॉरिटी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बार बार हम पर विश्वास किया, और खास करके श्रीमद स्वामी शिवमयानंद जी महाराज जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे ऑल ओवर रामकृष्ण ऑर्डर के, तो उन्होंने कहा था सुरेश जब तक मैं हूं तब तक तुम भी रहो, जब तक मैं कन्वेनर हूं। वो कन्वेनर हुआ करते थे। तो इस तरह से, और उसमें काम ये हुआ खास करके आदिवासी गांवों के बीच में जा करके देखना, काम देखना, प्राइवेट सेंटर पर जाना, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस 2 बार, हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस करवाना, और वहाँ जा करके जो है सो भारतीय जो हमारी संस्कृति है
वेदांत साहित्य है, या स्वामी विवेकानंद का, ठाकुर का, माँ का, स्वामी जी का जो भी है, तो उन सब का मैसेज प्रचार करना। बिहार और मिथिला में आप उसके कहाँ बाद गए? दरभंगा में हुआ था बहुत, भागलपुर में कई बार गए हैं, तो दरभंगा में गए। गांव सब में भी आप लोग गए? इंटीरियर गांव में तो विवेकानंद जी का बहुत प्रचार नहीं हुआ। एक गांव दो गांव है, जैसे कि पुतोई हनुमान नगर वगैरह है, उधर हम गए थे। लेकिन एक बात है कि वहाँ पर और काम की जरूरत है, और हम उसमें काम करना चाहेंगे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन मोराबादी आश्रम श्रीमद स्वामी भवेशानंद जी महाराज का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया। आप अभी प्रेजेंट में बिहार झारखंड दोनों का? नहीं, रामकृष्ण मिशन मोराबादी रांची, अच्छा, जिसके अंदर में करीब 200-250 गाँव है विवेकानंद सेवा केंद्र। अच्छा। उसके बाद यूनिवर्सिटी है जी। दिव्य बेस्ट केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र इंडिया का 2 बार बेस्ट केवीके मिल चुका है, 4 बार। और हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो नैक प्लस 2 बार जीत चुका है, पूरा इंडिया में 2nd पोजीशन। अच्छा। उसमें पढ़ाता भी हूँ सप्ताह में 3 दिन जी। और ओबेटनिक ऑनरेडी विदाउट सिंगल पेनी। और उसके बाद जो है गवर्निंग बॉडी मेंबर। बहुत अच्छा। की भी जो है हम लोग को समझना पड़ेगा। ये हमको ये चूंकि आपने इतना पढ़ाई किया है, वेद उपनिषद सबका ज्ञान रखते हैं आप, स्वामी विवेकानंद को पूरा पढ़े, सिस्टर निवेदिता का मैं भी पढ़ा हुआ है, मास्टर एज ए सॉ हिम, उसमें उन्होंने क्या क्या कहा, कितनी बड़ी बातें कही। अब थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी का विजन और महर्षि श्री अरविंदो जी का जो सुपरामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसके उन दोनों के बीच में जो तालमेल था, इसके विषय में आप क्या मैं श्रीमान जी आपको बता देना चाहता हूँ कि वह ईस्वी बहुत ही पुण्य समय था, पुण्य दिवस था कि जिस वर्ष विवेकानंद जी पश्चिम की ओर जाते हैं, उसी वर्ष अरविंद पश्चिम से आते हैं। और ऋषि अरविंद, उस समय ऋषि अरविंद नहीं थे, क्रांतिकारी अरविंद थे। युगांतर और कर्मयोगिन नाम की 2 उनकी पत्रिकाएं छपती थी, जो युवाओं में बहुत ही प्रसिद्ध थी। और इतना ही नहीं, वो बड़ौदा में वहाँ के जो शासक थे, तो उनको वहाँ पर अपने जगह कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति दी थी। शायद हमको लग रहा है कि ही वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर उस समय में। बहुत बड़े घराने से थे। बचपन में तो वो बंगला भी नहीं जानते थे। उनके पिताजी वगैरह जो तो सो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग थे, उनको पढ़ाने के लिए भी इंग्लिश नर्स आया करती थी। लेकिन एक ऐसा जो वेस्टर्न माहौल में बालकपन बिताया हो, जो पश्चिम में अंग्रेजों के बीच रहा हो और सबसे अधिक नंबर अंग्रेजी में लाता हो, और वैसा व्यक्ति जिसकी इंग्लिश पढ़ने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ेगी बड़े बड़े विद्वानों को, तो वैसा व्यक्ति कैसे ऋषि हो गए? योगी, वितरागी, निष्प्रिय, एकदम अकिंचन, सन्यासी, इस प्रकार से उनकी वृत्ति कैसे हुई? जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि रामकृष्ण देव का अरविंद का आध्यात्मिक संबंध था। रामकृष्ण देव का देहावसान हुआ है 1886 ईस्वी में, और अरविंद जी उस समय में जन्म भी नहीं लिए थे। 1875 में उनका जन्म है अरविंद जी का, जहां तक मुझे याद है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब देखिए कि वो दक्षिणेश्वर, उनके कमरे से दक्षिणेश्वर की मिट्टी बरामद हुई थी, जिसका कि इसमें कुछ अणु मिला हुआ बम बनाने का मिट्टी है। अंग्रेज लोग उनके घर से कैप्चर किया था। दक्षिणेश्वर जाते थे, ठाकुर के कमरे में ध्यान लगाते थे श्री अरविंदो। और उसके बाद विवेकानंद जी से भी भेंट उनकी नहीं हुई। 1909 ईस्वी में जब हुए अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस के तहत जो है, तो उनको जेल में डाला गया था, और ऐसा प्लानिंग था कि उनको मार ही दिया जाएगा, उनको निकले, क्योंकि वो तो सारे क्रांतिकारियों के सरदार थे, वो बौद्धिक क्रांतिकारी थे, सब उन्हीं से प्रेरणा लेते। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ, विवेकानंद जी के छोटे भाई, उनके कलीग थे भूपेंद्र नाथ दत्त, वारिंद्र घोष, यहाँ तक कि आपको उस समय में जितने भी थे सचिंद्र सान्याल वगैरह जो थे, सब अरविंद से प्रभावित थे। तो एक युवकों की टोली थी, जितने भी अखाड़ा थे सब पर कुश्ती हो रहा है, मल्ल हो रहा है, मल्लखंब हो रहा है, इस सारा अरविंद का बनाया हुआ जब खेल था। तो
उस समय मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ, उतना विशद है वो महाकाव्य है अपने आप में वो, जी, एकदम सच। इसलिए बहुत संक्षेप में नट से मैं कह रहा हूँ। तो ये हुआ। अब जब तो उस समय में उन्होंने सब में विवेकानंद जी शरीर धारण करके, ये कोई सपना नहीं था, 15 दिन तक लगातार, ये अपनों से बात नाम की पुस्तक में ऋषि अरविंद ने लिखा है, विवेकानंद जी आते थे और 15 दिन तक उनको सुपरामेंटल जो फिलोसफी है अति मन, तो उन्होंने कहा था अति मानवता वगैरह पर तो मैंने काम कर दिया, विवेकानंद जी ने उनको कहा अरविंद को, अति मन पर तुमको काम करना है, एक काम अधूरा है, इसको पूरा करना है, दैट इज द टास्क गिवन बाय स्वामी विवेकानंद टू ऋषि अरविंदो। अरविंदो ने उनको हृदयंगम किया और उसके बाद से ऐसा भावांतर हुआ ऋषि अरविंद में कि वो सब में, जज में भी, वकील में भी, अपराधी में भी, सब में कृष्ण का कृष्णमय जगत हो गया, वो कृष्णमय हो गए, वो साक्षात कृष्ण के रूप हो गए। इसलिए कहा गया है जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म को जाना ब्रह्म रूप नहीं होता, ब्रह्म ही हो जाता है। तो कृष्ण को जानकर कृष्ण ही हो गए ऋषि अरविंदो। उसके बाद उनको आकर के बारिश में भीगती हुई सिस्टर निवेदिता आती है दौड़ती हुई, मार्गरेट नोबल आती है, बोलती है अरविंद जी आप यहाँ जल्दी से निकलिए, आपको मारने का प्लान बन रहा है। और उनको चंद्रनगर के रास्ते से आया और चंद्रनगर में पता चला, वो भी फ्रेंच कॉलोनी था लेकिन सुरक्षित नहीं था क्योंकि कलकत्ता के नजदीक था चंद्रनगर, इसलिए वहां से पांडिचेरी चले गए। अब देखा जाए इसमें ये समता नजर आई। ऋषि अरविंदो ने कहा था कि ये स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया रामकृष्ण विवेकानंद ने, वो अपने ताकत से प्राप्त किया है, पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। और नया भारत उसी दिन शुरू हो गया जिन रामकृष्ण देव का जन्म शुरू हुआ। ये ऋषि अरविंदो का ऑथेंटिक बात है, ये कोई कहीं सुनाई हुई बात नहीं है जी। उस दिन से ऋषि अरविंद जो है उनके एकांत उपासक बन गए थे। यहाँ तक कि रामकृष्ण मिशन में सुहास बाबू की तरह अरविंद भी गए थे सन्यासी बनने के लिए, वहां से मना कर दिया गया। कुछ लोगों को रामकृष्ण मिशन ने मना किया, ऋषि अरविंदो को, सुभाष चंद्र बोस को और गुरु जी गोलवलकर जी को। तो कहने का मतलब है ये लोग अपने अपने क्षेत्र में किसी सन्यासी से कम नहीं है। सन्यासी क्या, ये लोग ब्रह्मर्षि सब हैं, ये सारे पूज्य हैं। इसलिए महापुरुषों की जो जहां तक बातें हैं, विवेकानंद जी को बहुत बड़े प्रशंसक रहे सर। बहुत आपने इतना मैं भाव पाता है। अब थोड़ा हमको एक उपनिषद का विजन, क्योंकि आपने उपनिषद इतना स्टडी किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेरा तबियत उतना सही नहीं है, आप जानते हैं मैं अभी कॉन्स्टिपेशन से कितना ग्रसित हूँ, फिर भी मैं दौड़ा आया क्योंकि मुझे लगा कि आपसे कुछ संसार को, देश को और हमारे सनातन खास करके उपनिषद और वेदास पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, my dear viewers, it becomes very incumbent on my part to share, some sort of very my fundamental privacy which I'm just trying to make it public. Couple of years ago, I went to meet Dr. Karan Singh to have an insight into Vedas and Upanishad, especially Upanishad, because Upanishad I have been reading, to some extent, and I do have a tremendous, profound interest in Upanishad. So I went to learn, to get some sort of insight into the integral or integrated part of Upanishad. Dr. Karan Singh informed me that he is no scholar of Upanishad. He has, a performance. I wouldn't say performed, but he claimed to have a greater insight into Vedas. So ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा उपनिषद पर और विवेकानंद का विजन को जोड़ते हुए थोड़ा हमारे उपनिषद में जो शब्द है वही विवेकानंद के शब्द हैं और वही अरविंदो के शब्द हैं जी। इन लोगों ने कहा है कि मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, सब उपनिषद की बात कह रहा हूँ जी। क्लेम नहीं किए कि मैंने प्रतिपादन, हाँ विवेकानंद ने जैसे कि अति मन का अभी प्रतिपादन किया ऋषि अरविंदो ने जी, सुपरामेंटल का, तो वैसे ही न्यू वेदांत का प्रतिपादन किया विवेकानंद ने जी। जो छूट गया था, जहाँ खालीपन लग रहा था, जहाँ वर्णाश्रम धारण घर में जकड़ा हुआ वेदांत था, उसे निकाल करके कुटियों से पहाड़ों से निकाल करके, कुटियों से, झोपड़ियों से निकाल करके आपको उन्होंने वेदांत का दर्शन जो है दूर विश्व तक पहुंचाने का काम किया और ग्लोबल विजन था। अब वेदांत का जो वेदांत में 3 को पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद हुआ, गीता हुआ, ब्रह्मसूत्र हुआ। ये तीनों पर दोनों महापुरुषों ने काम किया और क्या कहेंगे, वो उपनिषद के रूप ही थे, वो दोनों महापुरुष उपनिषद के रूप ही थे। और तो रामकृष्ण देव तो जीवंत काव्य है उपनिषद के,
हम लोग सोचते थे क्या पहले कि विवेकानंद वचनामृत सरल किताब है, तो विवेकानंद साहित्य को पढ़ने के बाद ही समझा जा सकता है कि रामकृष्ण वचनामृत क्या है, एक एक शब्द जो है उसका। तो कहने का मतलब ये है, उपनिषद मतलब एक गंगा है, और स्वामी जी कहते हैं यह उपनिषद से बढ़कर के कोई महाकाव्य, कोई काव्य आज तक हुआ ही नहीं है विश्व में। इतने बड़े प्रशंसक को पढ़ना। Very important, sir. Sorry to go. My dear viewers, when our esteemed guest makes some a miraculous sort of revelation, it readily comes to my mind, to have had a very important interaction with Sri, respected Sri Yogendra Yadav ji, who happens to be a part of this particular book, Global, the pioneer book in the world, The Living Legends of Mithila, Part 2, a global linguist. Dr. Yogendra Yadav had shared a very important incident by way of an anecdote with me. He said to me when he was in Germany, one of the, as I already said, he is a global linguist, one of the German scientists, claimed to have an audience with him. So when both of them sat together, that German scientist, shared his own perception with Yogendra Yadav ji. He said to him, "Sir, can you arrange a Sanskrit teacher to me?" Dr. Yogendra Yadav was taken aback. It came to him as bird from the blue. He said, why do you need a Sanskrit scholar? He said, "My dear professor, science has hit the cul-de-sac. It has already hit the dead end. And only Upanishad is a pivotal source of its resurrection. And that is why I want to learn Sanskrit, so that I can have an insight into Upanishad, because Upanishads have double meanings. And it is very, very productive and helpful for science. That is what I wanted to share with you, by way of what इसको लास्ट कर रहे हैं जी। उपनिषद शब्द जो है ना जी, उसमें होता था क्या कि 3 संविधा लेकर के आते थे छात्र, और गुरु के पास बैठते थे समित पानी होकर के, तो उपनिषद कहते थे, बैठो आकर के, उसी शब्द से निकला उपनिषद। बैठ करके शास्त्र श्रुति के अनुसार से सुनना इसी का धर्म था। अब देखा जाए उपनिषद कैसे अभी भी प्रासंगिक है, इसको तो आप बिल्कुल ही समझ सकते हैं, आप युवाओं को समझा सकते हैं उपनिषद क्यों इतना प्रासंगिक है। इसलिए उसमें एक एक शब्द जो है वो न प्राचीन होगा कभी, न नवीन होगा, वो शाश्वत है। जैसे कि सब बहुत अच्छा है, सधस्व सौम्य यमराज ने नचिकेता को कहा कि हे युवक, हे नचिकेता, तुम श्रद्धावान बनो। सधस्व सौम्य, हे सौम्य मतलब होता है सज्जन, हे सौम्य एडजेक्टिव है, श्रद्धस्व मतलब श्रद्धावान बनो, ये हर एक युवक को बनना चाहिए। आप और नचिकेता का कहता आत्मविश्वास है। नचिकेता को जब कहते हैं कि आत्मा के रहस्य को तुम जानने योग्य नहीं हुए हो, तुम पृथ्वी का राज ले लो, तुम जब तक जिंदा रहना चाहते हो जिंदा रहो, जब तक तुम वो काम करना काम करो, भोग करो, स्वर्ग की अप्सराएं सब ले जाओ, ये सब लाइन लिखा हुआ है। नचिकेता ने कहा जब इसका वैल्यू इतना है कि आप इससे तोड़ रहे हैं, तब तो हमको इससे बेकार है, नहीं चाहिए। क्या इससे मृत्यु नहीं आएगी क्या? तो जब तक चाहो तब तक जी लो, तो भी उस मृत्यु आएगी। तब जो इतना वैल्यूएबल चीज है, तो क्या कहते हैं, मैं अधिकारी हूं, ये यमराज, हे यमदेव, मैं अधिकारी हूं, मैं बहुतों से अच्छा हूं, कुछ लोगों से कम जानता हूं, नहीं जानता हूं तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस a young should have nowadays also। तो ये चीज जो है ये उपनिषद सिखाती है। उपनिषद का जो मूल चीज है विवेकानंद ने जोड़ दिया है, अभी अभी अभी, माँ भय माँ भय माँ भय, डर नहीं निडरता, कोई डर नहीं, नो फियर, बी फियरलेसनेस क्वालिटी आप में आना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। सबसे बड़ा पाप डर है, ये विवेकानंद ने कहा है। क्योंकि डर क्यों होता है? जब खराब काम करते हैं तब होता है। उपनिषद से ही उन्होंने कहा त्याग नहीं कई अमृतत्व मानसु, त्याग नहीं कई अमृतत्व मानसु, मतलब त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और उसमें एक 9 जोड़ दिए, त्याग नहीं कई मतलब 9 जोड़ जुट जाने से क्या हो गया, त्याग ही से। उसका मतलब था त्याग से, अब त्याग ही से,
तो sacrifice yourself for the sake of your country. That is the essence of the Upanishad by स्वामी विवेकानंद. तीसरी बात यह है, जब उस समय में आप तो खैर मिथिलांचल के प्रसिद्ध विद्वान हैं, लगभग प्रतिष्ठित विद्वान हैं, आपने किताब जिक्र भी किया है लीजेंड ऑफ मिथिला में, खास करके ऋषि याज्ञवल्क्य का. याज्ञवल्क्य जो हैं तो वो एक विद्वान हुए, ऋषि अष्टावक्र अलग विद्वान हुए. अष्टावक्र कौन है? अष्टावक्र के नाना जो हुए वो धौम्य हुए, आरुणि जिनका है, और श्वेत केतु मामा हुए. तो करो ऋषि जो थे अष्टावक्र के पिताजी, उनकी शादी हुई थी धौम्य की पुत्री से. तो अब देखा जाए, धौम्य जो है वो गुरुकुल चलाते हैं, उपनिषद की बात कर रहा हूं, गुरुकुल चलाते हैं. अब गुरुकुल में धौम्य क्या करते हैं, अपने पुत्र को, जो उनके शिष्य भी थे, गुरुकुल में पुत्र भी पढ़ता था, राजा बेटा भी पढ़ता था, उनका पुत्र भी पढ़ता था. बोला कि मैंने सब शास्त्र पढ़ लिया पिताजी. बोले जाओ, उस पीपल का एक पेड़ है, वहां से एक दाना ले आओ. पीपल का पेड़ का जो बीज होता है वो मस्टर्ड सीड के बड़ा सब्जा होता है. अब इसको काटो, काटा, क्या बचा तो छोटा, फिर काटो, अब क्या बचा और छोटा, और काटो, अब क्या बचा कुछ नहीं. डोंट से नथिंग. What you say nothing, that is everything. The secret of this mighty banyan tree is hidden in that nothing. That is why don't say nothing. That is the message of Upanishad. ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और इसी चीज को आइंस्टीन ने E=mc² फार्मूला दिया था. हाइजेनबर्ग ने इसी को कहा था अनसर्टेनिटी पीपल, जो हमारे यहाँ अबाउट आजकल के इतिहासकार से 5000 वर्ष पहले कम से कम तो समझ लीजिए कि हुए थे वो लोग उपनिषद ऋषि. गार्गी, मैत्रेयी, ये सब का जो है, गार्गी जब जनक के दरबार में प्रवेश करते याज्ञवल्क्य को, सावधान याज्ञवल्क्य, मेरे यहाँ तुनीर में 2 विषैले प्रश्नरूपी बाण हैं, मैं तुम पर चला रही हूं. तो उस समय में पूरा सभा जो है सो नर्वस हो गया था. एक नारी कहता ना कि अरे नारी उपेक्षिता रही, कभी उपेक्षिता नहीं थी. मध्यकालीन युग में मुगलों और दिल्ली सल्तनत के समय से लेकर के अंग्रेजों के समय तक ये नारी उपेक्षिता रही है. नारी तो बलवान थी, मैठी थी. जब हम कहते हैं कुंती पुत्र, हम कहते हैं कुंती पुत्र कहते हैं, माद्री पुत्र कहते हैं, कौशल्यावर्धक कहते हैं, कौशल्यानंदन कहते हैं, तो माँ का नाम पहले आता था. CBSE वही काम कर रही है कि माँ का नाम भी बोर्ड के परीक्षा में लिखवा रहा है. तो मातृशक्ति बहुत जागृत थी, स्वयंवर प्रथा थी, अपने मन से लड़की का चुनाव था, देव दानव यक्ष किन्नर सब आते थे उसमें. तो गुण विशेषता थी, हमारा बुद्ध खुला हुआ ओपन था. लेकिन आजकल धर्माचार्य लोग, जगत गुरु लोग इसको जितना संकीर्ण करते हैं शासन करने के लिए, उससे हमारे भारत की मात्रा घटती है, बढ़ती नहीं है. संसद का मतलब है fearlessness. The scholarly ebullience, the scholastic edification that this great scholar encompasses, or great scholar epitomizes, that was the pivotal trigger behind my coming all the way from a residence to have a direct interaction with this great scholar. My dear viewers, indeed Swami Vivekananda was my key to knowing great Adi Shankaracharya, to have, just for having an insight into Upanishad, to even knowing Maharishi Sri Aurobindo later. All these I do attribute the entire credit to the great collective consciousness of Bharatvarsha, that is Swami Vivekananda. Our great esteemed scholar, revered Sri Suresh Babu, has been instrumental behind spreading the concept of Swami Vivekananda in Mithila. It becomes all the more essential, rather the quintessential part of today's, I would say today's academia, in as much as if Swami Vivekananda's vision can alone liberate Mathils, because the institution of Adi Shankaracharya unfortunately has failed to live up to its expectations. And you have seen how the sort of dramatic, the theatrics that is going on across the nation. It needs the purer form of spiritual gurus and spiritual reforms in the country. And only Swami Vivekananda, the Maharshi of all Maharshis of this country, only his vision can be instrumental behind institutionalization of the real glorious Sanatana Dharma. That is what our Honorable Prime Minister too has been aspiring for the same. My dear viewers, you have seen the trinity of great photographs,
juxtaposing each other. Great Swami Vivekananda, Thakur Ramakrishna Paramahansa, Ma Sarda Ji. Over the books, you see, entire, the safe is filled up with the books of Swami Vivekananda. Entire racket is filled up with the books of Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa, Sister Nivedita, Maharshi Sri Aurobindo. All these great books are adorning the self of our great scholar. And he had gifted me a great book, 2 cents, portraying Ramakrishna Paramahansa along with that of Maharshi Ramana. Indeed, Maharshi Ramana was the contemporary of great Maharshi Sri Aurobindo. And I would love to, unravel the juxtaposition of these two greats as to how Maharshi Ramana's vision juxtaposed or rather coexisted with that of Sri Ramakrishna Paramahansa Ji. So it becomes very, very important indeed my coming all the way from our residence to have a direct interaction. It was a learning experience for me because I have learned a lot from this great scholar. And indeed, it is a blessing in disguise. And indeed, as I said in the beginning, this is Vivekananda, author, academician, and public intellectual. My dear viewers, I am also an author of The Making of Narendra Modi, Unmaking of Jawaharlal, a pioneer book in the wake of abrogation of Article 370 of Indian Constitution, which I presented to Honorable, our esteemed guest today. So most importantly, it has been a very, very fruitful, beneficial and a constructive journey. And is coming all the way to his house, and it is also a heralding of a beginning of the new book. That is the third. You all would appreciate that by the grace of Divine Mother Kishori Ji, I have taken it as my very, very noble and altruistic mission to write the trilogy of the living legends of Mithila, and by grace of God, the first legend, serendipitously though I have stumbled upon, is that of Sri Suresh Narayan Jhaji, who is a brand ambassador of Swami Vivekananda in Mithila, Bihar and Jharkhand. There can be none better and more appropriate than Sri Suresh Narayan Jhaji to figure in the upcoming book in the year 2027 and in 2028, The Living Legends of Mithila Part 3rd, where Sri Suresh Narayan Ji will definitely be adorning the particular book as a living legend. So it has been a wonderful meeting with a great scholar, and I am so much thankful to you, sir, for giving me a wonderful opportunity of having a direct interaction with you. It was absolutely a great opportunity for me too to learn so many stuffs, so many concepts of philosophies of Upanishads. So with this I am returning. I am sure I am just recommending this particular video to be visited by large number of people, especially youth, educated, the entire intelligentsia class from across the world, because the video should not be confined within India. It is meant for the entire intelligentsia class, because it is a very, very erudite and knowledge-giving video which is focusing on Upanishad, Vedas and about the ancient glory of Bharat Varsha. Thanks to all of you. Thank you. Thank you, sir. A lot of gratitude to you. Thank you, sir.